என் மேல் அன்பு வைத்தவர் நீரே. ஒரு தந்தையை போல என்னையும் மாற்றி தேற்றிடுவீரே. தாயின் மேலா என் மேல் அன்பு வைத்தவர் நீரே. ஒரு தந்தையை போல என்னையும் மாற்றி தேற்றிடுவீரே. என் உயிரோடு கலந்தவரே, உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். என் உயிரோடு கலந்தவரே, உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். உம்மேலே அன்பு வைத்தேன் நான், உமக்காக எதையும் செய்வேன். உம்மேலே அன்பு வைத்தேன் நான், உமக்காக எதையும் செய்வேன். கைவிடப்பட்ட நேரங்களெல்லாமும் கரம் பிடிப்பேன். என்னை காக்கும் கரம் அதை நழுவ விடாமல் முத்தம் செய்வேன். கைவிடப்பட்ட நேரங்களெல்லாமும் கரம் பிடிப்பேன். என்னை காக்கும் கரம் அதை நழுவ விடாமல் முத்தம் செய்வேன். என் உயிரோடு கலந்தவரே, உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். என் உயிரோடு கலந்தவரே, உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். அன்பு வைத்தேன் நான், உமக்காக எதையும் செய்வேன். உம்மேலே அன்பு வைத்தேன் நான், உமக்காக எதையும் செய்வேன். எந்தன் கால்கள் இடரும் போது விழுந்திட மாட்டேன். உம் தோளின் மீது ஏறிக்கொண்டு பயணம் செய்வேன். எந்தன் கால்கள் இடரும் போது விழுந்திட மாட்டேன். உம் தோளின் மீது ஏறிக்கொண்டு பயணம் செய்வேன். என் உயிரோடு கலந்தவரே, உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். என் உயிரோடு கலந்தவரே, உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். உம்மேலே அன்பு வைத்தேன், உமக்காக எதையும் செய்வேன். உம்மேலே அன்பு வைத்தேன் நான், உமக்காக எதையும் செய்வேன். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்று நமக்கு வசிக்கிறார். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்று நமக்கு
வசிக்கிறார். தண்ணீரை இரத்தமாய் மாற்றினார் அதிசயம். தண்ணீரை இரத்தமாய் மாற்றினார் அதிசயம். வெறும் நீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார் அதிசயம். வெறும் நீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார் அதிசயம். செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். செங்கடலை இரண்டாக பிளந்திட்டார் அதிசயம். செங்கடலை இரண்டாக பிளந்திட்டார் அதிசயம். புயல் காற்றை தம் வார்த்தையாலே அடக்கினார் அதிசயம். புயல் காற்றை தம் வார்த்தையாலே அடக்கினார் அதிசயம். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். செய்கிறவர் நமக்குள் வசிக்கிறார். குருடருக்கும் செவிடருக்கும் சுகம் தந்தார் அதிசயம். குருடருக்கும் செவிடருக்கும் சுகம் தந்தார் அதிசயம். ஒரு சொல்லாலே மரித்தோரை எழுப்பினார் அதிசயம். ஒரு சொல்லாலே மரித்தோரை எழுப்பினார் அதிசயம். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் பாவியான என்னையும் உயர்த்தினார் அதிசயம். பாவியான என்னையும் உயர்த்தினார் அதிசயம். நேசக்கரம் நீட்டினார் அதிசயம். நேசக்கரம் நீட்டினார் அதிசயம். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் வசிக்கிறார். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் वसीकिरार। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
पुकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यज्ञता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, यज्ञता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरे है बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ना वो ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगा तो ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनारजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू है मुनारजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी,
देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं भी उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जियूं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, याद करो जिसने हम सबको बचाया है, याद करो जिसने हम सबको बचाया है, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, तेरी हो जय जयकार, जगत का तारनहार, तेरी हो जय जयकार, जगत का तारनहार, अनुग्रह ज्योति जीवन प्रदान किया, अनुग्रह ज्योति जीवन प्रदान किया, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, यीशु मसीहा ने दिखाया स्वर्ग का मार्ग, यीशु मसीहा ने दिखाया स्वर्ग का मार्ग, धीरे से शांति से हम सबको बढ़ना है, धीरे से शांति से हम सबको बढ़ना है, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, याद करो जिसने हम सबको
सबको बचाया है। याद करो जिसने हम सबको बचाया है। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। जीवन जल का नदियाँ बही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन जल का नदी बही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देरी करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देरी करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया। സിംഗക്കെവിയിൽ ഞാൻ വിരുന്നേ അവർ എന്നോടാമന്നിരുந்தார் சுற்றிருக்கும் மத்தியில் நடந்தேன் பனி தூளியாய் என்னை நனைத்தார் சிங்கக்கேவியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்கக்கேவியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே, சாத்தானை சமுத்திரம் வீழுங்குமே. ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே, சாத்தானை சமுத்திரம் வீழுங்குமே. அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கேணியில் நான் இருந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். சுற்றெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனி தூளியாய் என்னை அழைத்தார். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததால் சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே. ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததால் சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே. அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கேணியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 92 पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान। तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले वाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझते और मूर्ख इसका विचार नहीं करते कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारियों जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि
हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनार्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ और मैं अपने दरियों पर दुष्ट करके और उन कुकर्मियों का हाल मेरे विरुद्ध उठते थे सुनकर संतुष्ट हुआ हो। धर्मी लोग खाजूर की नाई फूलते फलते और लवनोन को देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, उस पर रस भरे और लालते रहेंगे, जिससे ये प्रकट होगा कि यहोवा सीधा है, वह मेरा चट्टान है और उससे कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। Praise the Lord. Psalm 92. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. On an instrument of 10 strings, on the lute and on the harp, with harmonious sound. For you, Lord, have made me glad through your work. I will triumph in the works of your hands. O Lord, how great are your works! Your thoughts are very deep. A senseless man does not know, nor does a fool understand this. When the wicked spring up like grass, and when all the workers of iniquity flourish, it is that they may be destroyed forever. But you, Lord, are on high forevermore. For behold your enemies, O Lord, for behold your enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. My eye also has seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Hallelujah. Hallelujah. कैसे हो सब लोग? अच्छे? कितने लोग एक्साइटेड है गॉड का वर्ड सुनने? जो लोग बहुत एक्साइटेड, एक बार जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। परमेश्वर बहुत अच्छा है। हमें महसूस करने, समझने बहुत टाइम लगता है। जैसे बोलूं, जितना भी परमेश्वर को जानूं कम लगेगा। हालेलुया। जो सिर्फ लाइट्स ऑफ करना है, ऑफ रहने, लाइट चाहिए। ठीक है, काम कर दे, लाइट चाहिए अपने को। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में फोन करो ना, लाइट ऑन करो। जरूरत है उनका? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में फोन करने का जरूरत है? नहीं है। क्यों? वेरी गुड, क्लैप। स्विच है, क्या है अपने पास? स्विच ऑन कर। आज भी मसीह में हम हैं, हमारा स्विच बाइबल है। हालेलुया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को फोन करने का जरूरत नहीं है, बाइबल उठाने का जरूरत है। हालेलुया।
क्या होता है ना, अपन कुछ भी करेंगे ना, शैतान को प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 घंटा जीसस का सीरीज देख लो, चोजन, आप इंस्टाग्राम में रील्स डाल दो, एडिट कर दो वीडियो, संडे आ जाओ चर्च, मतलब आप कुछ भी कर लो, शैतान को प्रॉब्लम नहीं। बट शैतान को प्रॉब्लम एक चीज से है, जब तुम वचन जान लो। हालेलुया। जब तुम्हें पता चल गया ना स्विच, कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सा स्विच ऑन करना है, वो शैतान को प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आप जो करना है ना लाइफ में आप करो, आप बिजनेस करो, लाइफ एंजॉय करो, 2 घंटा जीसस का मूवी देख लो, जो भी करना है ना जीसस के बारे में बैठ के बात करना है करो, काउंसलिंग करो, वर्शिप करो, सब करो। बट व्हेन यू सिट टू रीड द बाइबल, व्हेन यू नो वेयर इज द स्विच फॉर माय प्रॉब्लम, उससे शैतान को प्रॉब्लम। हालेलुया। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फोन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है। अपने को सिर्फ क्या करना है, स्विच ऑन करना है। हालेलुया। सेम वे अपने पास बाइबल है, हमें सिर्फ बाइबल पढ़ना है, जीसस के बारे में जानना है और अपना प्रॉमिस लैंड में रहना है। हालेलुया। काफी सारे मसीह के लोग एक बार जब जीसस ने उनको छुआ, मसीह में आ जाते, बट उनका लाइफ कुछ डिफरेंट नहीं रहता बाकी दुनिया के लोग और उनमें, क्योंकि वो लोग डिफरेंट बनाना नहीं चाहते। हालेलुया। ठीक है। सब लोग मुझे लग रहा है बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, बट सब एक बार उठ जाएंगे। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया जीसस को मिलना है, और जब तुम लोग संडे चर्च आ ही गए, अभी 1 आवर मेरे साथ रहने ही वाले, तो मैं तो बोल रही खुशी खुशी रोना। बल्कि आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, अगर मैं बोलूं कि आपका लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उसका मतलब ये झूठ है। कोई भी एज के हो तुम, सबको कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स लाइफ में है। हालेलुया। बट वो प्रॉब्लम से बढ़कर अपना जीसस। हालेलुया। आपका जो समस्या पहाड़ जैसे रहने दो, उससे आप डरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पहाड़ से भी बढ़कर एक जन आपके अंदर है। कौन है वो? आवाज नहीं आ रही। हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे, सबको पता है ये सॉन्ग, सब लोग ये एक्शन सॉन्ग करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है परमेश्वर के लिए डांस करने? वेरी इजी स्टेप है, सबको पता है। एक बार मैं बताऊंगी, फिर तुम लोग तो पता है, तुम लोग रॉक जैसा ऐसा एकदम फुल फॉर्म में करोगे। बोलो, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। कितने लोग को पाप और श्राप चाहिए? नहीं चाहिए तो फेंको। पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। लेट्स डू विद म्यूजिक। रेडी है? तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। वेरी गुड। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए जीवन में ऐसा। वेरी गुड। श्राप मेरे, अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, सब अच्छे से करो। दिल में जावे होठों पे आंखों में। वेरी गुड। दिल में होठों पे आंखों में, तू है के लिए सब चीज उसको दिखाओ। जावे होठों पे, यस, दिल में जावे होठों पे आंखों में। अभी ऐसा करो। तू
किसी से भी तुम जो शर्माना है शर्माना, जीसस के लिए कभी शर्माने का नहीं। हालेलुया। अभी मेरे को एक रहस्य समझा, ये वर्शिप और डांस में क्या है। आंटी आप हिंदी नहीं जानते हो, मैं कभी तमिल में बात करूंगी तो आंटी को तमिल नहीं समझ में आता, हिंदी नहीं, बट आंटी मस्त डांस की अभी। हालेलुया। डांस में कनेक्ट हो सकते हैं। हालेलुया। आई एम श्योर heavens is happy today. Hallelujah. So, you know, with all your heart, with all your body, with all your mind, with all your soul, पूरे बल से, पूरे दिल से परमेश्वर के लिए करो। Hallelujah. 3, 2, जॉन रेडी? जॉन तो हमेशा रेडी रहते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। तुम दिल में ऐसे बन गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बोलो पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। once again, तुम दिल में ऐसे बन गए, जिंदगी भर के लिए, वेरी गुड, जीवन में ऐसा काम कर गए। once again, पाप मेरे दिल में, जान में, होठों पे, आंखों में, यस, दिल में, जान में, होठों पे, कौन है? यस, दिल में, जान में, होठों पे, आंखों में, यस, दिल में, जान में, होठों पे, आंखों में। अभी ऐसा करो, तू ही है, तू ही है, तू ही है, यीशु तू ही है, वेरी गुड, तू ही है, तू ही है, राजा तू ही है, यस, तू ही, आमेन, यीशु तू ही है। लास्ट में नीलाम करेंगे, तू ही है, तू ही है, तू ही है, राजा तू ही है। कितने लोग को अच्छा लगा परमेश्वर का आराधना करके? अच्छा लगा? घर में म्यूजिक ऑन करके करने का ऐसा सब। हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप 5-10 मिनट ऐसा म्यूजिक ऑन करके पूरा दुनिया भूल के ऐसा आराधना करके देखो, वो प्रॉब्लम आपको बड़ा लगेगा ही नहीं। हालेलुया। एज अ क्रिश्चियन हमें कुछ चीज, एज अ क्रिश्चियन मतलब एज अ बिलीवर, हमें ये तो कम से कम पता रहना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने लिए क्या किया है और हमें कैसा जीना है और कैसे के रूप में अपना लाइफ में वो प्राप्त करना है। हालेलुया। मैं आज आपको कुछ चीज बताऊंगी जो तुम थोड़ा सोच कर देखो कि आपका लाइफ में कुछ डिले है, प्रॉब्लम्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, रॉन्ग चॉइसेस है, मिस्टेक्स है, जैसा सोचा वैसा लाइफ में हुआ नहीं। उसका रीजन क्या है और मैं वो, उसका कारण क्या है और मैं कैसा प्राप्त करूं मेरे लिए जो है। कितने लोग को ऐसा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो रखा है मेरे को चाहिए? कितने लोग को ऐसा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो लिखा है वो मेरे लिए चाहिए, मेरे को चाहिए? मेरा डिसीजन ये है, परमेश्वर ने जो भी मेरे लिए रखा है वो मेरे लिए क्या है? चाहिए। अभी परमेश्वर ने जो भी मेरे लिए रखा वो मेरे लिए चाहिए, बट मैं वो लूं कैसा? फॉर एग्जाम्पल, जो अभी आप कोई फ्रेंड के घर गए, बड़ा बंगलो है, बहुत सारा रूम्स है, स्विमिंग पूल है, एसी है, अलग अलग रूम, प्ले एरिया है, सब है, बट तुम्हें वो फ्रेंड का घर का कौन सा डोर कहाँ ओपन करना है, कौन सा लाइट कहाँ पर ऑन करना है, गेम्स का सेक्शन कैसा ऑन करना है, वो सब तुम्हें पता नहीं रहेगा। तुम्हें किसका जरूरत रहेगा? फ्रेंड का, पूछने के लिए, हाँ कि नहीं? वैसे ही मैं आज आपकी एक फ्रेंड हूं। कौन हूं? फ्रेंड हूं। आपको मैंने इनवाइट किया है परमेश्वर का प्रॉमिस के लिए। आपको पता नहीं रहेगा, मे बी मैं सिर्फ आपको की किधर है, स्विच किधर है, वही बताने वाली। इसके बाद आपको कैसा उसमें कितना एक्सपीरियंस करना है, कितना चलना है, वो आपके हाथ में। चर्च में अभी सबसे ज्यादा छोटा आई थिंक वो है
कौन है अपना तिशान है। अपना गॉड है ना, एक ग्रेस गॉड है। क्या गॉड है? ग्रेस। ग्रेस मतलब हिंदी में अनुग्रह। क्या? अनुग्रह। उसका मतलब क्या है? गॉड का नेचर, उनका कैरेक्टर में इन्वॉल्व क्या है? अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह। जब परमेश्वर ने एडम को बनाया तो एडम से परमेश्वर मिलने आया, बनाया उसको मिलने आया। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा अरे एडम को मैंने बना दिया, अभी उसको श्वास लेने के लिए एयर चाहिए। एडम को बना दिया, पानी पीने के लिए पानी चाहिए। एडम को बना दिया, खाना खाने के लिए बीज चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। उसके साथ ये उसको क्या क्या जरूरत है वो परमेश्वर ने सोचा नहीं। परमेश्वर को ये मतलब उसको दिन रात बनाऊं या कैसा उसका हाथ में दो, वो सब जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का क्रिएशन इतना सिस्टमेटिक था स्टार्टिंग से। उन्होंने एडम का जो भी जरूरत था, तो लाइट चाहिए था, डे एंड नाइट क्रिएट किया, फ्रूट्स था वो गार्डन में, उसको जो भी जरूरत था वो सब क्रिएट करने के बाद एडम को बनाया। हालेलुया। गॉड को कोई सरप्राइज नहीं है। जिस दिन तुम ये दुनिया में आए, मतलब मैं तिशान को बोल रही हूँ, तिशान को 10 इयर्स में क्या चाहिए, 20 इयर्स में क्या चाहिए, 30 इयर्स में क्या चाहिए, सब परमेश्वर ने बना के रखा है। तुम्हें उसमें डाउट है किसी को? नहीं। इनफैक्ट तिशान जब पेट में था, प्रेग्नेंट जब रहता है ना बच्चा, तभी उसको क्या चाहिए परमेश्वर ने बना दिया। हालेलुया। क्या है ना, ये दुनिया में सब लोगों के लिए परमेश्वर का प्रोविजन है, ग्रेस है, बट क्या सब लोग ग्रेस अचीव कर रहे हैं? क्या सब लोग को सेम? अगर देखो परमेश्वर के पास पार्शियलिटी नहीं, वचन कहता है ही इज नॉट अ पार्शियल गॉड। गॉड हैज प्रोवाइडेड ऑल ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने सब ब्लेसिंग्स दे दिया, बना दिया, बट फिर सब लोग सेम जैसा क्यों नहीं है? परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए सेम है, बट क्या सब लोग सेम टू सेम खुशी है, सेम टू सेम ब्लेसेड है? आप बताओ मुझे। नहीं है। अपने अगर आप कंपेयर करेंगे ना, आपका हमेशा लगेगा मेरा लाइफ में कुछ कम है, उनका लाइफ में वो बेटर है, मेरा लाइफ में ये। बट मैं आपको आज सच बता रही हूँ, परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह जो है ना, वो ऑलरेडी आपका लाइफ में है, बट क्या वो पूरा अनुग्रह आपने एक्सपीरियंस किया है? क्या उनका ग्रेस पूरा एक्सपीरियंस किया है? एडम एंड ईव, उनका डिसोबीडियंस की वजह से परमेश्वर का पूरा प्रोविजन का लॉस कर दिया। उन्होंने ये अच्छा वर्ल्ड को फॉलन वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया। हालेलुया। बट बिकॉज ऑफ गॉड्स नेचर, परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? ग्रेस, ग्रेस देना। तो उन्होंने क्या किया? आए, क्रूस उठाए, क्रूस पे मर गए और वापस जी उठे। क्रूस पे परमेश्वर हमारे बदले मरे। उसका मतलब ऐसा समझो, वो क्रूस पे मुझे लटकना था, बट मैं नहीं लटका। हालेलुया। मेरे पाप की वजह से, मेरे माता पिता के पाप की वजह से, या मेरे गलती की वजह से मुझे लटकना था, बट मैं नहीं लटका। मेरे लिए कौन लटका? जीसस। अभी जीसस ग्रेस, उनका अनुग्रह की वजह से, क्रूस उठाने की वजह से आपका रिजेक्शन, आपका शेम, आपका बीमारी, आपका गरीबी, आपका श्राप, कर्सेस, आपका पाप, सब उन्होंने ले लिया। बट फिर भी आज लोग पाप में जी रहे, रिजेक्शन में जी रहे, ब्रोकननेस में जी रहे, बीमारी में जी रहे। क्या परमेश्वर वापस आके मरने वाले? नहीं। परमेश्वर मर गए, दे दिए। तुम्हें अगर कोई रिजेक्ट किया तो खुश हो जाओ ना, वो रिजेक्शन में थोड़ी आपका लाइफ खत्म होने वाला है। तुम्हें कोई जॉब नहीं मिला तो वो जॉब में आपका लाइफ खत्म नहीं होने वाला है, उससे बेटर जॉब परमेश्वर क्रिएट करेगा। उनका ग्रेस बड़ा है। हालेलुया। उनका ग्रेस समुंदर से भी बड़ा। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा उनका ग्रेस है। हमेशा एक चीज याद रखो, अब्बा फादर को अभी कुछ बड़ा देने के लिए है नहीं। जब अब्बा फादर ने आपको प्यार किया तो उन्होंने हेवन को एम्प्टी कर दिया जीसस क्राइस्ट को भेज के। एम्प्टी मतलब समझा, एक बॉटल से पूरा पानी फेंक देंगे तो बॉटल क्या हो जाएगा? एम्प्टी। अगर जीसस क्राइस्ट को ही दुनिया में भेज दिया मरने, जीसस क्राइस्ट का चमड़ी फाड़ा गया था आपके लिए,
जीसस क्राइस्ट का लहू लास्ट ड्रॉप तक दुनिया में था, तो अभी बचा क्या है देने? सिर्फ अगर आपको ये रेवलेशन मिलेगा ना, वो क्रॉस में जीसस ने मेरे पाप के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए, मेरे रिजेक्शन के लिए, मेरे फेलियर्स के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो भी मेरे गरीबी, मेरे बीमारी के लिए परमेश्वर ने मरा, आज मैं फ्री जीऊंगा, मेरे को टेंशन लेने का जरूरत है। ये एक रेवलेशन आपका लाइफ चेंज करेगा। मैं बोली ना, सब लोग सेम है क्या? कुछ लोग वो चीज को टैप कर दिए, कुछ लोग वो समझ गए मैं ब्लेसेड हूं, मेरा सिचुएशन कुछ भी होने दो, मेरा डिसीजन कितना भी गलत रहने दो, परमेश्वर चेंज कर सकते हैं। अगर तुम में यहाँ पर जो भी कोई है, ऐसा लग रहा है कि आपका गलत डिसीजन के वजह से या आपने गलत टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरा ग्रेस चला गया, तो वो गलत। आपका ग्रेस किधर नहीं चला। हालेलुया। जब तक तुम जिंदा है, जब तक तुम जीवन मतलब जी रहे हो दुनिया में, तब तक आप ग्रेस टैप कर सकते हो। हालेलुया। वचन तो मैं बताऊंगी, वचन बताने के पहले आपका हृदय में वो एक्सेप्टेंस है क्या? अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि आप इतने बड़े हो कि आप गॉड का प्लान को क्रैश कर सकते हो? परमेश्वर ने आपके बारे में एक प्लान रखा होगा लाइफ में, वो प्लान को तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम क्रैश कर दोगे? तुम्हारा गलती में इतना दम है कि परमेश्वर का प्लान क्रैश हो जाएगा? तुम्हारा रॉन्ग डिसीजंस में इतना दम है कि परमेश्वर का प्लान क्रैश हो जाएगा? तुम्हारा मिस्टेक्स में इतना दम है कि परमेश्वर का प्लान क्रैश हो जाएगा? तुम्हारा रिजेक्शन सेम सब उठाकर साइड में रखो, रिकंसाइल विद गॉड। हालेलुया। रिकंसाइल विद गॉड ना मतलब वापस आ जाओ परमेश्वर के पास, वापस आ जाओ। कब तक वापस आ सकते हैं? जब तक आप जिंदा है, क्योंकि मरने के बाद मैं आके प्रचार नहीं कर सकती हूँ। मरने के बाद कुछ फायदा है? वचन कहता है कि मरने के बाद कोई आराधना कर सकता है क्या? ऐसा वचन है? मरने के बाद कुछ फायदा है? नहीं। बट जब तक जीवित है तब तक चांस है। सब बोलो, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे को चांस है। जोर से बोलो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे पास चॉइस है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे पास ग्रेस है। और जोर से बोलो, मेरा मिस्टेक इतना बड़ा नहीं है, मेरा पाप इतना बड़ा नहीं है, मेरा गलतियां इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर का ग्रेस कम पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम फर्स्ट वचन रीड करेंगे आज के लिए, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 और 19। विश्वास के द्वारा हाँ अनुग्रह से हाँ। तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Hallelujah. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of work, lest anyone should boast. अभी ये वचन को ध्यान से सुनो। एफिशियंस चैप्टर 2 8 और 9 में क्या लिखा है? एक बार हिंदी में रूपा सिस्टर रीड करेगी, सब ध्यान से सिर्फ सुनो, बाद में घर पे जाके तुम लोग मेडिटेट करो वापस, बट अभी सुनो क्या लिखा है सिस्टर। क्योंकि विश्वास के द्वारा, विश्वास, अभी सब जन ये विश्वास, ये वर्ड को रखो। विश्वास अपने हाथ में ही है। किसके हाथ में? अपने हाथ में विश्वास। हाँ, आगे। अनुग्रह किसके हाथ में है? जीसस के हाथ में। क्या है? किसके हाथ में? अनुग्रह जीसस के हाथ में है। हाँ, तुम्हारा उद्धार हुआ है। अपना क्या हुआ है? उद्धार। मतलब आज जो भी इधर बैठे वो लोग सबका उद्धार हो चुका है, क्योंकि किधर ना किधर तुमने जीसस को एक्सेप्ट कर दिया। जीसस को एक्सेप्ट कर लिया तो आपका उद्धार क्या हो गया? उद्धार हो गया उनके अनुग्रह की वजह से। हाँ, और ये तुम्हारे ओर से नहीं, ये तुम्हारे ओर से नहीं है। तुम लोग कभी ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा अच्छा कामों की वजह से मैं बच गया, मेरे अच्छा कामों की वजह से मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैंने वो किया परमेश्वर के लिए, ये किया परमेश्वर के लिए। तुम ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमारे वजह से ये अनुग्रह
नहीं है, हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, मतलब परमेश्वर का तोहफा है। हालेलुया। अभी समझो, डैडी आ रहे मेरे को मिलने एक दिन, मेरे को आके डैडी की दे रहे हाथ में, क्या दे रहे, कीज दे रहे, और बोल रहे ये गाड़ी तेरे लिए गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। तो मैं एक बार डैडी गिफ्ट है बोल दिए, क्या बोले? तोहफा है। क्या बोले? तोहफा। उसके बाद मेरे को डैडी को पूछना है, क्या डैडी मैं आपको कभी वापस पैसा दूं, ऐसा बोलना है? क्यों? जब गिफ्ट है बोला, बात खत्म। बट अगर डैडी ने गाड़ी दिया और बोले तू EMI भर ले, मैंने ये सेलेक्ट किया, तो गिफ्ट हो सकता है वो? नहीं। अगर डैडी ने हाथ में कीज दे दिया और बोले ये गिफ्ट है, फिर मैं उनको पैसा दूं, मतलब उनका गिफ्ट का मैंने इज्जत नहीं रखा। अभी देखो, जॉन अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं और उसको मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लेके दे दिया, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिक के लिए। अगर मैंने उसको इंस्ट्रूमेंट बोला, जॉन तू अच्छा काम किया, मैं तेरे लिए गिफ्ट दे रही हूँ, तू रख ले, तू चर्च में इतना ये किया, तू रख ले। अभी जॉन आके बोलेगा, अक्का मैं आपको वापस कर दूंगा पैसे बाद में, तो दैट इज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग मी। मैंने उसको क्या दिया? गिफ्ट दिया। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए आप बोलोगे ना मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो इट इज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग गॉड। बट गिफ्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है? आपका विश्वास से। हालेलुया। वचन में ही आंसर है। क्या है? गिफ्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है? हम आज अब्राहम को विश्वास का पिता, इनफैक्ट प्रॉस्पेरिटी सीरीज में हम जो प्रॉस्पेरिटी का कवनेंट ब्लेसिंग अब्राहम से फ्लो होके अपने पास आए, क्योंकि हम सीड है अब्राहम का, वो अब्राहम विश्वास का पिता है, क्योंकि गॉड का ग्रेस, गॉड का अनुग्रह उसने टैप किया उनका विश्वास के साथ। हालेलुया। वो उनका परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। और अगर कोई बड़ा गलती कर सकता है ना, तो अब्राहम ने बहुत बड़ा गलती किया। 75 ईयर्स में जब गॉड ने अब्राहम को प्रॉमिस किया, तेरे लिए तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, अब्राहम और सारा मिलके गॉड को हेल्प करने वाले थे, आगर को बीच में लेके आए। गॉड ने बोला आगर को लेके आने, बट बंदा कितना फेथ रखा होगा कि 25 ईयर्स के बाद भी आइजैक हुआ, और आज हम अब्राहम आइजैक के वंश से ही निकले। जीसस क्राइस्ट भी वही वंश से निकले। हालेलुया। It is a live example. Your mistakes are not too big for God's covenant grace. Hallelujah. The only thing Abraham did was he keep on walking in faith, not by his mistakes, not by what he lacked. उसके पास क्या कमी है ना, उस पे उसने भरोसा नहीं किया। गलती तो किया ना अब्राहम ने भी, खुद से गॉड बोल रहे इधर जाओ, बोल रहे नहीं, मैं एक प्लान बनाया परमेश्वर, आगा रहे ना, एक तो एज भी हो रहे, बट क्या उसकी वजह से उसका ब्लेसिंग परमेश्वर ने ले लिया वापस? नहीं। बट अब्राहम के पास और एक चॉइस भी था। क्या पता और एक चॉइस? यही रोज रोने का, परमेश्वर मैंने गलती कर दिया, शिट आपने तो मुझे बड़ा जाति बनाने वाले थे, मैं मिस्टेक कर दी, अभी मेरा कॉलिंग चला गया, अभी मेरा ग्रेस निकल गया, अभी मेरे से नहीं होगा, अभी मैं बड़ा जाति नहीं बनूंगा, मैं किसी के लिए आशीर्वाद नहीं बनूंगा। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेसिंग, आशीर्वाद मैंने खो दिया। ये सब अब्राहम ने बोला ही नहीं। Abraham kept on having faith. He was even having faith when there was some silence. क्योंकि तुम गॉड को डिसअपॉइंट कर सकते हो आपका गलतियां की वजह से, बट क्या गॉड एक्चुअली डिसअपॉइंट होकर आपका ब्लेसिंग कैंसिल कर रहा है क्या? नहीं। हालेलुया। आपका गलतियां की वजह से आपका ब्लेसिंग कैंसिल नहीं हो रहा है, बट इसका मतलब नहीं समझो कि आप कैसे भी जियोगे तो एंड में अचीव करोगे। नहीं, आपको एक रिकंसिलिएशन चाहिए। रिकंसिलिएशन मतलब आपको वापस परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। आपका प्रॉमिस को वापस मांगना पड़ेगा। अब कितना भी दूर चले जाओ, वापस आप आओगे तो परमेश्वर दौड़ के आते हैं। हालेलुया। ये वचन में क्लियरली लिखा है, उनका अनुग्रह क्या है आपके लिए? एक गिफ्ट, तोहफा है। उनका अनुग्रह क्या है? डैडी कभी दे रहे हो गाड़ी का की? हालेलुया। आपको पता है, एक राजा है ना, एक राजा को सिर्फ एक बेटा ही रात को 3 बजे भी उठा सकते हैं, डैडी पानी दो बोल के।
और किसी में हिम्मत नहीं रहते। हम राजा का बेटी बेटा है। We are sons and daughter of a king. You can wake up a king at 3 a.m. Obviously, our God never sleeps, but you have that authority. You have that right. You are an inheritance. Hallelujah. Are you all able to understand, relate with me? Don't ever question God's grace. What can I do? Just receive it by faith. Hallelujah. अभी faith क्या है, grace क्या है, कैसा receive करना है, वो पूरा अभी जो आधा घंटा में तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगी और मेरे हिसाब से जो भी आपको समझा उतना भी लेके आप लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना। अगर आपने निर्णय ले लिया, आपको पता है चेंज कभी होता है? चेंज बाहर से दिखने टाइम लगता है, चेंज तब होता है जब आप अभी निर्णय लोगे, अभी डिसाइड करोगे। हालेलुया। लेट्स रीड रोमन्स चैप्टर 11 वर्सेस 6। अनुग्रह से हुआ है, एक मिनट, जो कैसा हुआ है? अनुग्रह से हुआ है। हाँ, सिर्फ कर्म से नहीं, क्या कर्म से नहीं। कर्म मतलब आपके जो किए हुए अच्छा कामों की वजह से आपको अनुग्रह नहीं मिला है। हाँ यही तो अनुग्रह, हाँ फिर अनुग्रह नहीं रहा। हाँ, वाव। अगर आपका कामों की वजह से आपको अनुग्रह मिला तो वो अनुग्रह नहीं रहा। आपके कामों की वजह से नहीं, आपके कामों की वजह से नहीं। अगर आपके कामों की वजह से ये अनुग्रह, ये ग्रेस मिला तो ग्रेस नहीं रहेगा। इसका मतलब एडम को जो देना था परमेश्वर को पता था, हमें जो देना था परमेश्वर को ऑलरेडी पता है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं है। सब बोलो, मेरे कामों की वजह से मुझे अनुग्रह नहीं मिला। बट वापस मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह तो है, बट क्या सब अनुग्रह में जी रहे? क्या सब सेम ब्लेसिंग में है? सब सेम खुशी में है? सेम लेवल पे इनकम है? नहीं। सब सेम हेल्थ के साथ है? नहीं। जो अनुग्रह को समझा और कैसा अपनाना है वैसा अपनाया, उसको पूरा एक्सपीरियंस होगा। आगे रीड करेंगे गलेशियंस 2:21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को हाँ, व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को, अनुग्रह के बारे में बोल रहे हैं, वो क्या नहीं ठहराता? व्यर्थ मतलब वेन नहीं बोलूंगा। क्योंकि यदि हाँ व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, हाँ तो मनुष्यों का मरना व्यर्थ होता। हाँ, Christ died in vain. If you keep on speaking about your own righteousness, what does this word say? कभी लाइफ में आपने ये सोच लिया ना, मैं अच्छा प्रेयर कर रहा हूँ, अच्छा बाइबल रीड कर रहा हूँ, मैं गरीबों को हेल्प कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ चर्च के, इसके वजह से परमेश्वर का अनुग्रह आपके लाइफ में आया, उसका मतलब है कि क्राइस्ट डाइड इन वेन। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए मरा ना, वो वेस्ट है, ऐसा लिखा है वचन में। If you speak of your own thing, I did this, I did that, I did this way, I did that way, that's why I'm blessed. That means Christ has died in vain for you. You are saying that Christ has died in vain? No. Hallelujah. और एक बार वो वचन रीड करो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को सब रिपीट करो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मतलब आपके कामों के द्वारा धार्मिकता होती, हाँ तो मनुष्यों का मरना व्यर्थ होता। हाँ, अगर तुम तुम्हारे बारे में बात करें, मैं वो किया ये किया, मतलब परमेश्वर का जो आपके लिए मरना वो वेस्ट। अभी चलो अब्राहम के बारे में देखते हैं। एक तो अब्राहम के बारे में बहुत बार हम विश्वास का पिता बोलते रहते। एक्चुअली जब परमेश्वर और अब्राहम का मुलाकात हुआ था, तो तुम्हें क्या लग रहा है? वो बैठ के एकदम जीसस को बुला रहा था या गॉड से बात कर रहा था, इसकी वजह से परमेश्वर ने आके इसको अनुग्रह दिखाया क्या? ऐसा तुम्हें लग रहा है? वचन बोलता है, He chose me first, then I chose him. He loved me first, then I loved him. So first हाथ बढ़ाने का काम किसका था? परमेश्वर का था। हम उनसे प्यार करने से पहले किसने हमसे प्यार किया? गॉड। अगर आप उत्पत्ति में जाके देखोगे,
अब्राहम ऐसा कुछ आप जैसा सोच रहे हो वैसा वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था फिर परमेश्वर ने आके उसको आशीर्वाद किया, वैसा नहीं है। अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर जब उसको मिलने आया और परमेश्वर जेनेसिस 12 में आप रीड करके देख लो, परमेश्वर अब्राहम से मिलने आया और परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये देश छोड़ के तू जा, मतलब बाहर निकल, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, तेरे वजह से लोग आशीर्वाद रहेंगे और फिर तुझे जो आशीर्वाद करेगा उनको मैं भी आशीर्वाद करूंगा, तुझे जो श्राप देगा उनको मैं भी श्राप दूंगा। ये सब परमेश्वर उसको बोल रहे हैं। बट एक परमेश्वर ने बोला, क्या बोला, ये देश छोड़ के, और अब्राहम सुना। वो देश छोड़ के बाहर निकलना उसका विश्वास था। हालेलुया। आज तुम्हारा विश्वास क्या है? परमेश्वर तुमसे विश्वास से लेना बोला तो तुम्हारा विश्वास का एक्ट कहां पर है? परमेश्वर ने दे दिया, अभी तब सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह अनुग्रह है, बट तुमने एक्चुअली फेथ एक्शन पे ले लिया या कंफर्ट जोन में ही है? हालेलुया। और एक चीज है, जब उसका फेथ जर्नी था परमेश्वर के साथ चलने का, वो इजी नहीं हुआ रहेगा। क्यों? अब्राहम ऑलरेडी 75 इयर्स का था। कितना साल का था? वचन में तो क्लियरली लिखा है जेनेसिस 12 में, ऑलरेडी 75 इयर्स का था। उसने ऑलरेडी मिस्टेक भी कर दिया ये जर्नी में। इसके बाद भी परमेश्वर ने 99 इयर्स में वापस विजिट किया और वापस उसको ब्लेस किया। आपको पता है क्यों? अब्राहम को परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उनका विश्वास की वजह से। अब ये विश्वास आखिर है क्या? वो क्या है विश्वास? क्या ऐसा टच कर सकते हैं विश्वास को? कर सकते हैं? तो क्या है विश्वास? ऐसा क्या विश्वास मेरे लाइफ में कम है कि मेरे को जो चाहिए वो मिलने रहे? अगर मैं सब लोग से पूछूंगी आपके पास विश्वास है, तो सब हाँ बोलेंगे। आप लोगों के पास विश्वास है? हाँ क्या नहीं? सब हाँ बोलेंगे। बट एक्चुअली बाइबल में जो लिखा है विश्वास, वो विश्वास आपका लाइफ में है कि आपका प्रॉमिस को लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अब्राहम के पास वो विश्वास था। आपको मैं बताती हूँ, वचन के द्वारा ही बताती हूँ। हिब्रूज चैप्टर 11:1 रीड करो। हाँ, जिसकी हम आशा करते हैं, हाँ, उसके लिए निश्चित होना। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना ही वह है। Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. अब ये जो विश्वास अब्राहम की लाइफ में ऑपरेट किया, आपका लाइफ में भी ऑपरेट कर रहे हैं क्या? वो देखो, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका लाइफ में कुछ आशा है आपको करने के लिए, हाँ कि नहीं? क्या आशा है कि नहीं? है कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे रीड करो सिस्टर। वही 11:1। आप इस बार आशा की हुई वस्तुओं का आप आशा किए कोई वस्तु, मतलब कुछ तो चीज पे आपका क्या है? आशा है। कुछ तो आपको लाइफ में करना है, किधर तो पहुंचना है। आपके बारे में हो सकते हैं, आपके बच्चे के बारे में हो सकते हैं, करियर के बारे में हो सकते हैं, मिनिस्ट्री के बारे में हो सकते हैं, मम्मी डैडी के बारे में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट कुछ तो आशा है, होप है। हाँ, आशा की हुई वस्तु का निश्चय हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का ये इंपॉर्टेंट है। अनदेखी है मतलब वो आपका लाइफ में अभी क्या है? अनदेखी है, हुआ नहीं है। हाँ, उसका प्रमाण है, एविडेंस है। आई थिंक वो एविडेंस के लिए ऐसा लिखा है। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। फॉर एग्जाम्पल, अभी लियो बोला चिट्टी मेरे को दिल्ली बहुत पसंद है, तो मैंने दिल्ली में एक बड़ा बंगलो खरीद लिया। ठीक है, और बंगलो खरीदा मतलब क्या है? टाइटल डीड मैंने साइन किया होगा, हाँ कि नहीं? टाइटल डीड साइन किया और वो टाइटल डीड मैंने लियो को दे दिया, इसको 18 इयर्स में दे दो। अभी सच है कि दिल्ली में एक बंगलो है, सच है कि नहीं? टाइटल डीड हाथ में, वो भी सच है कि नहीं? लियो के हाथ में टाइटल डीड है, दिल्ली में बंगलो खरीद लिया है पैसा देके, बंगलो उधर ही है, टाइटल डीड भी इधर ही है, पर लियो अभी देख नहीं पा रहे।
लियो बुला सकते हैं क्या ये बंगलो आ जाए इधर? लियो देख नहीं पा रहे हैं, बट बंगलो एक्चुअली है, टाइटल डीड भी सच है। अभी अब्राहम का और उसमें सिमिलैरिटी है, कैसा मैं बता। अभी तक लियो ने उसने वो बंगलो को देखा ही नहीं, देखा है क्या? नहीं, बट टाइटल डीड मतलब प्रॉमिस है कि मैंने तेरे लिए पेमेंट कर दिया और तेरे लिए ये बंगलो है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो लियो आजा फास्ट बोला। अभी फॉर एग्जाम्पल लियो अब्राहम है, ठीक है, अब्राहम को बोला अब्राहम आकाश को देख, ये जो ये दिख रहे हैं ना स्टार्स, उतने तेरे बच्चे हैं। जब उसके पास एक बच्चा नहीं था, एक बच्चा नहीं था, ये स्टार्स दिख रहे हैं, इतने तेरे बच्चे। वो बोलेगा बाप रे, स्टार्स को तो मैं गिन भी नहीं सकता हूँ, बट इतना बच्चे मेरे फैमिली लाइन में आने वाला है। बट इसने विश्वास किया, अनदेखी है वो, हालेलुया। बट गॉड का वर्ड है, वो वर्ड जो टाइटल डीड है ना, गॉड का वर्ड है, वर्ड पे उसका फेथ था। अच्छा यही है, जाके बैठो। आपको पता है रोज अब्राहम बाहर आया होगा, क्योंकि 25 साल बीच में तो गलती इसने किया, उसमें डाउट नहीं है। 25 साल वो बाहर अंदर रोज दिन रात जा रहे। जब भी वो आकाश को देख रहे उसको क्या लगा होगा, गॉड ने मेरे को बोला मेरा वंश इतना बड़ा रहेगा, मैंने गलती तो कर लिया। एक्चुअली उसका वंश उतना बड़ा होने वाला टाइटल डीड जो है ना, वो गॉड का वर्ड है। क्या है? गॉड का वर्ड है। जब उसको दिखा नहीं, अभी बच्चा होने के बाद तो बोलेगा ना, अरे हाँ मैंने विश्वास किया इसलिए बच्चा हो गया, होने दो फिर मैं परमेश्वर का गवाही दूंगा। ऐसा नहीं है। जब कुछ भी नहीं है ना, अब्राहम के पास बिल्कुल कुछ भी, उसको एज हो गया था, कुछ उसको लगा भी नहीं, तभी भी अब्राहम ने विश्वास किया। आज आप जो लाइफ में सोच रहे हो, परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर ने अब्राहम को स्टार्स दिखाया, आपको क्या मन में परमेश्वर ने दिखाया आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में कुछ दिखाया होगा ना, आपका बच्चा ये करेगा, आप वो करोगे, ये सब दिखाया होगा ना। क्या आपके पास वो विश्वास है वो होने से पहले? इनफैक्ट जब अब्राहम को बच्चा हो गया था ना, परमेश्वर ने बोला चल चल आजा, कुर्बान देना है, सैक्रिफाइस करना रहेगा। अब्राहम ने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास उसको इतना टच कर गया कि यार ये साल में, ये उम्र में, ये गलती करने के बाद परमेश्वर ने मेरे को बच्चा दिया, मतलब वो बच्चा मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ। He is the father of faith, but he accepted the grace what God has given. शॉर्ट में आपका इतना बड़ा गलती होने के बाद भी वो पूरा जो 25 इयर्स परमेश्वर के साथ चलकर बच्चा होने के बाद वो बच्चा परमेश्वर बोल रहे थे तो भी वो देने रेडी था, क्योंकि उसने विश्वास और वो अनुग्रह इतना एक्सपीरियंस कर लिया। अब इमेजिन करो ना, एक दिन, ठीक है, एक हफ्ता आपको परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिस किया तो आप एक हफ्ता प्रेयर करोगे, एक महीना प्रेयर करोगे, एक साल प्रेयर करोगे, 2 साल प्रेयर करोगे, फिर बोलेगे शायद मैं गलती से सुन लिया। अब्राहम को 25 इयर्स वही प्रॉमिस में चलना पड़ा, रोज दिन रात हो रहा है, इसको देखना है स्टार्स को। परमेश्वर ने तो बोला मेरे को बड़ा जाति बनाएंगे, बड़ा जाति बनाएंगे। 25 years, very long time, and 25 years is not because only of God. He made a mistake, वो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया। आपका ब्लेसिंग डिले मतलब हो सकता है जब आपने गलती कर दिया, बट छोड़ा नहीं, ब्लेसिंग ले लिया। हालेलुया। आज हम लोग सब इधर बैठ के उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो है क्या? इधर तो नहीं है ना, बाइबल में उनका नाम है, और बाइबल में आइडेंटिटी देखो भाई, फ्रेंड ऑफ गॉड, फादर ऑफ फेथ, जो मर गया था ना पैराडाइज में, वेंट टू अब्राहम्स बूज़म। क्या रिकॉग्निशन है बाइबल में, वॉकिंग इन फेथ, नॉट बाय साइट। हालेलुया। सर, नॉट बाय सर्कमस्टेंसेस, नॉट बाय माय मिस्टेक्स, नॉट बाय माय फेलियर, नॉट बाय माय रिजेक्शन, नॉट बाय माय फैमिली बैकग्राउंड, नॉट बाय योर ओन थिंग। आप कोई भी फैमिली बैकग्राउंड से हो जाओ, कोई भी गलती कर दो, कोई भी मिस्टेक कर दो, कोई भी रिजेक्शन फेलियर होने दो, आपका विश्वास मत छोड़ो। मैंने देखा नहीं, बट मुझे पता है दिल्ली में बंगलो है, क्योंकि चित्ती ने बोल दिया, मतलब है। हालेलुया। आपको भी वैसे ही बोलना है।
मैंने देखा नहीं, बट परमेश्वर ने मेरे को बोला तो मेरा ब्लेसिंग है। पतरस ने चला ना, जीसस जब बुलाए, किसमें चला पतरस ने? पानी में। जीसस, पीटर ने बोला, जीसस आए, पीटर ने बोला परमेश्वर, आप परमेश्वर हो तो मुझे बुलाओ। एक्चुअली मैंने बोला ना, राजा को उठाने का हक बच्चा को है 3 बजे। राजा को कोई भी राज्य में आके उठा नहीं सकते, मे बी वाइफ भी नहीं उठा सकती है, कोई सर्वेंट आके नहीं उठा सकते पानी के लिए, बट उनका बच्चा उठा सकते हैं। डैडी मेरे को प्यास लग रहे थे। पीटर बोला परमेश्वर, जीसस आप है तो मुझे बुलाओ। जीसस ने एक ही वर्ड बोला, कम। पीटर पानी में नहीं चला, पीटर गॉड के वर्ड पे चला। परमेश्वर ने बुलाया ना, वचन आजा, वो वचन पे चला। जीसस सेड कम, ही वॉक्ड ऑन दैट वर्ड कम। इसको फिर डाउट नहीं था। फिर वो जब डूबने लगा ना, क्योंकि वो इधर उधर देखा, हम भी डूब रहे हैं क्योंकि हम इधर उधर देखते, हम इधर वचन सुनते, एक्साइटेड हो जाते, फिर घर जाते, फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा तो अरे यार, ये प्रॉब्लम्स लाइफ में खत्म ही नहीं हो रहे। पीटर लाइव एग्जांपल है। हम वचन रीड करेंगे, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 8। लेट्स रीड Hebrews chapter 11 verses 8। हाँ अब्राहम जब बुलाया गया हाँ तो आपका मानकर ऐसी जगह निकल गया हाँ जिसे विराट में देने वाला था। हाँ। और ये ना जानता था कि किधर जाता है। विश्वास से अब्राहम चला गया जब परमेश्वर ने बुला लिया, उसको पता नहीं था किधर जा रहे। By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going, not knowing where he was going। उसमें लिखा है क्या? उसको सब परमेश्वर ने पूरा पिक्चर दिखा दिया, कौन सा शहर में उसका घर रहेगा, कौन सा, उसको पता नहीं था। क्या नहीं था? पता नहीं था। हमें क्या चाहिए? पूरा मास्टर प्लान चाहिए। परमेश्वर आप हमें इधर भेज रहे ना, कौन लोग मिलने वाले हैं, किधर जाना है, किधर रहना है, क्या होने है, सब चाहिए। आप एक स्टेप ऑफ फेथ निकाल के रखो ना। और रीड करेंगे हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 11। विश्वास से सारा ने हाँ आप बुरी होने पर भी हाँ। गर्भ धारण करने की विश्वास से सारा ने, विश्वास से हाँ। सारा ने आप बुरा होने पर भी हाँ मतलब एज होने के बाद भी गर्भ धारण करने की हाँ। सामर्थ पाई। सामर्थ पाई। हाँ क्योंकि हाँ। उसने प्रतिज्ञा करने वालों को हाँ। अच्छा जाना था। हालेलुया, क्योंकि बिकॉज शी जस्ट गॉड एज फेथफुल। पहले सारा ने ही आइडिया दिया था अब्राहम को। क्या आइडिया दिया था? आगर से शादी कर लो या जो भी, और क्या है, हमें एक वंश मिल जाएगा। बट उसके बाद उसका मिस्टेक के बाद भी एक विश्वास उसके पास था कि अभी भी गॉड मुझे देगा, और वही विश्वास के वजह से उसको आइजैक मिला। वैसे लिखा ना वचन में, कुछ और लिखा है क्या? मे बी ये सब जेनेसिस में नहीं लिखा है, बट इधर क्लियरली लिखा है उसके विश्वास की वजह से उसको बल मिला है। अगर आज तुम बोल रहे हो मैं मेरे बल से कर लूंगा, मैं मेरे बल से कर लूंगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं चाहिए। फिर तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको चाहिए, तो बोलना है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर मुझे बल देता है। मैं आशीर्वाद हूं और दूसरे के लिए भी आशीर्वाद रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अब्राहम का वंश हूं। उनके खोड़े खाने से मैं चंगाई हो चुका हूं। जो भी ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का ग्रेस की वजह से आपको मिला है। हालेलुया। लास्ट में एक वर्ड देख के अभी हम लोग प्रेयर करेंगे। वचन दिया उससे तुम लोग मेडिटेट करो। जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 29 रीड। यूहन्ना में 20-29 रीड। तूने मुझसे कहा, यीशु ने उससे कहा, थॉमस से जीसस बात कर रहे हैं। तूने मुझसे देखा है, हाँ क्या इसलिए विश्वास किया है? हाँ। धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। अभी जीसस जब ये दुनिया में थे तो 3.5 years थॉमस जीसस के साथी था, मिनिस्ट्री में था। वो थॉमस
जब जीसस जी उठे तो क्या बोला, मैं जब खुद मेरे आंखों से देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। थॉमस बोला ऐसा, क्या बोला, मैं जब खुद देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। अभी जीसस आ गए, जीसस ने उनका हाथ भी दिखाया और क्या बोला, ये हाथ को क्या कर, टच करके देख। तो टच करके देखा, अच्छी बात है, बट उसके बाद जीसस क्या बोल रहे हैं, वही है वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने थॉमस से कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? हाँ, धन्य वे है धन्य वे है, मतलब हम है। कौन है, हम है, जिन्होंने बिना देखे हमने जीसस को देखा आमने सामने। अभी ये मत बोलो सिस्टर हम लोग ने सपना में देखा, आमने सामने जीसस का हाथ पे टच करके देखा, जैसा थॉमस देखा वैसा नहीं देखा है। तो जीसस बोल रहे धन्य है हम लोग जो बिना देखे विश्वास किए। हालेलुया। अब्राहम आइजक होने के बाद विश्वास नहीं किया। काफी लोग का प्लानिंग क्या है पता है, परमेश्वर एक चमत्कार करने दो फिर मैं विश्वास करूंगा। अब्राहम आइजक पैदा होने के बाद विश्वास नहीं किया। 25 साल जब आइजक था भी नहीं दुनिया में, आसमान देख के इतना सारा स्टार्स और इतना सारा ब्लेसिंग्स और मेरा वंश कहां पर है। आइजक होने के बाद वो विश्वास करता था ना, दैट इज नॉट फेथ, वो विश्वास ही नहीं है। तो थॉमस बोल रहे मैं टच करके देखूं फिर मैं विश्वास करूं। परमेश्वर बोल रहे धन्य, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नॉट सीन मी बट येट बिलीव। आज हमें विश्वास करने सिर्फ परमेश्वर का टाइटल डीड है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का अनुग्रह ने सब दे दिया। बट तुम लोग वेट मत करो कि मेरा चमत्कार होने के बाद में विश्वास करूं। इन सिंपल वे, ये ध्यान से सुनो, अगर आप कोई चीज के लिए बहुत दिन से प्रेयर कर रहे हो, बहुत दिन से विश्वास कर रहे हो कि मेरा लाइफ में ये होना चाहिए होना चाहिए, वो कोई भी चीज है, सबका माइंड पे अभी एक चीज लाओ। कोई एक चीज के लिए बहुत, वो घर हो सकता है, कार हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, जॉब हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, करियर हो सकते हैं, जो भी आप बहुत दिन से प्रेयर कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो हुआ नहीं। फ्यूचर टेंस है, जिस दिन वो आपका लाइफ में होगा ना, इफ यू कंसिडर इट एज अ मिराकल, मतलब आपका विश्वास कम था या नहीं था। बट व्हेन इट हैपेंस, इफ यू कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग, देन यू हैड फेथ। हालेलुया। उदाहरण, मेरा लाइफ में अभी मैं एक चीज के लिए बहुत दिन से प्रेयर कर रही हूँ, बहुत दिन से मैं प्रेयर की, विश्वास की। जब वो मेरा लाइफ में होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगी अरे वाह क्या चमत्कार हो गया, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी आई नो आई नो आई नो आई नो दिस हैज टू हैपन। हालेलुया। मैं बोलूंगी मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, ये तो होने ही वाला था, ये तो होने ही वाला था। हालेलुया। उसका मतलब क्या है, आपका विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह अगर मैंने विश्वास किया तो वो तो होना ही था। बोलो मेरा लाइफ में हो तो अगर आपका ब्लेसिंग मिला और अभी जो मेरे बात सुने अब बोले अरे मिराकल था यार, तो फिर आज का मैसेज वेस्ट है। जब वो होगा क्या बोलना था, ये तो होना ही था, हमारा चर्च बढ़ने वाला है, ये तो होना ही था, हमारा बच्चे अच्छे अच्छे जॉब में जाने वाला है, ये तो होना ही था, हमारे बच्चे स्टेट लेवल में गेम्स खेलने वाले हैं, आगे बढ़ने वाला है, ये तो होना ही था। जो भी आप सोच रहे हो मैं बिजनेस में ग्रो कर रहा, ये तो होना ही था। हालेलुया। जो भी आपका लाइफ में आप प्रेयर कर रहे हो वो होने के बाद क्या बोलना है, गवाही देना है, बट क्या बोलना है, ये तो होना ही था। दिस हैज टू हैपन, दिस हैज टू हैपन बिकॉज गॉड्स ग्रेस हैज प्रोवाइडेड, माय फेथ विल रिसीव इट। हालेलुया। हम सब अभी अपने आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की तरफ देखेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह ऑलरेडी आपको जो देना था वो दे दिया उन्होंने क्रूस पर। अगर आप वचन समझोगे और वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है वो आप कभी मिस नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी मिस्टेक या गलतियां किया
जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे लिए जो था वो अभी गया, मेरे हाथ से मिस हो गया, मेरा रॉन्ग चॉइस की वजह से, मेरे मिस्टेक्स की वजह से, मेरे गलतियां की वजह से। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह इतना है कि आपका जो मिस्टेक्स है, आपका जो गलतियां है, उसके वजह से परमेश्वर का अनुग्रह कम नहीं पड़ता। बट परमेश्वर चाहते हैं कि आप आपका कॉलिंग, आपका पर्पस फुलफिल करें, इसलिए आज परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। जैसा अब्राहम ने परमेश्वर को पकड़ लिया था, वैसा आप पकड़ लो। मे भी आपको दिख नहीं रहा है, कुछ एविडेंस नहीं है, समझ नहीं रहे किधर फंस गया पता नहीं है, बट मैं आपको सच बोल रही हूँ कि अगर आप आपका हृदय भी ओपन करो, और जैसा अब्राहम विश्वास का पिता ने परमेश्वर को पकड़ लिया, वैसा आप अगर परमेश्वर को पकड़ लिए और बोले मैं मेरा ब्लेसिंग लेके रहूंगा, तो परमेश्वर करने रेडी है। बट आप रेडी हो? Thank you, Jesus. I pray for the people who are here. I pray for the people who are watching this online, Lord. Lord, you have already provided everything through your grace. Give us a heart to receive through faith and help us to inherit all the promises what you have given for us. Give us patience, give us understanding, give us knowledge and wisdom to conquer and to get it, Lord. Lord, I pray nobody should miss their calling. Nobody should miss their destiny, Lord. Help them to fulfill what you have called for them, Lord. Maybe they are lacking, maybe they are not understanding, maybe they are confused, maybe they are low, maybe they are depressed, maybe they are disappointed or discouraged. Nothing can separate them from your love. Your word is true, Lord. Nothing can separate you from the love of God. ऐसा कोई भी चीज नहीं परमेश्वर और आपको अलग कर सकते हैं। जब तक आप जिंदा है तब तक आप आपका प्रॉमिस, आपका कॉलिंग, आपका पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। जो परमेश्वर आपके लिए योजना रखा है वो फुलफिल कर सकते हैं। बस आपका हृदय ओपन करो और परमेश्वर के हाथ में आज दे दो, और जब यहाँ से निकलोगे आप परमेश्वर को बोल के जाओ, परमेश्वर मैं आज विश्वास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपने जो भी मेरे लिए रखा मैं पालूं। थैंक यू जीसस। I bless them, I bless their family, I give them all, Lord, their work, their studies, their job, their career, their health, their family in your hands. Till we meet again, Lord, you protect them, keep them in your perfect. I ask all this prayer in your name. In Jesus Christ's holy, mighty, matchless name I pray. And the church said, Amen, Amen, Amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.